Good morning, everyone. This is your English class, and today we are going to study our poem Courage, Courage, and Courage. This poem we are going to study, although we have already studied this poem, but for the revision, I'm just going to make you understand once again. So, from today, I'm starting the reader part once again. So, let's understand this beautiful poem. Please pay the heed. When the burden grows heavy and rough is the way, when you falter and sleep and it isn't your day, and your best doesn't measure to what is required, when you know in your heart that you are fast growing tired, with the odds all against you, there is one thing to do, that is call on your courage and see the things through. Who battles for victory ventures defeat. Misfortune is something we all have to meet. Take the loss with the grace you would take in the gain. When things go against you, don't whine or complain. Just call on your courage and grin if you can. Though you fail to succeed, don't fail as a man. Next. There are dark days and stormy, which come to us all. When about us is in ruin, our hopes seem to fall. But stand to whatever you happen to meet. We must all drink the bitter as well as the sweet. And the test of your courage is, what do you do in the hour when reverses are coming to you? Never changed is the battle by curse or regret. Though you whimper and whine, still the end must be met. And who fights a good fight, though he struggle in vain, shall have many a victory to pay for his pain. So take your reverses as a part of your plan, which God has devised for creating a man. So this is all about this beautiful poem. Now we will understand this poem once again, word by word and line by line. Wait, let me come back. Let's start once again. When the burden grows heavy, rough is the way. तो उत्तर कहते हैं कि जब हमारी बर्डन ज्यादा हो जाए, बर्डन का मतलब हमारे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमने काम करने होते हैं, जब उनका बोझ हम पर ज्यादा हो जाए और हमारा जो वे है वो भी रफ हो, यानी कि जब हमें काम बहुत सारे करने हो और चलने वाला रास्ता रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल हो. When you falter and slip, और जब तुम फोल्टर होते हो यानी कि लड़खड़ाते हो, स्लिप हो जाते हो, गिर जाते हो, एंड इट इजंट योर डे, और पूरा दिन तुम्हारा खराब हो जाता है. यानी कि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और वो काम भी मुश्किल होते हैं और बार बार हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं और हमारा पूरा दिन भी खराब हो जाता है. थर्ड लाइन में कहता है, उत्तर कहता है, एंड योर बेस्ट डजंट मेजर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. यानी कि तुम अपना बेस्ट करते हो, यानी कि जितना तुम अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा तुम करने की कोशिश करते हो, परंतु फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पाते हो जो तुम्हें करना चाहिए था. यानी कि पूरी कोशिश के बाद भी तुम अच्छा नहीं कर पाते. When you know in your heart that you are fast growing tired, जब तुम्हें अंदर से पता हो कि तुम अब थक रहे हो और इससे अच्छा नहीं कर सकते हो. With the odds all against you, there is one thing to do. और जब सब चीज तुम्हारे खिलाफ हो, इतनी सारी मुसीबतें तुम पर आई हुई हो, उस समय तुम एक ही काम कर सकते हो. This is call on your courage and see the things through. यानी कि उस समय अपने करेज को बुलाओ, अपने साहस को बुलाओ, साहस से काम लो, हिम्मत से काम लो, फिर उनके थ्रू, यानी कि साहस से फिर उनके थ्रू काम करो, साहस लेकर, हिम्मत लेकर फिर अपने काम को अंजाम दो. नेक्स्ट लाइन में उत्तर कहता है, हु बैटल्स फॉर विक्ट्री वेंचर्स डिफीट.
यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है जो विक्ट्री के लिए लड़ते हैं, जो जीत हासिल करने के लिए लड़ते हैं, कभी कभी उनको हार का जोखिम भी उठाना पड़ता है। यानी कि कोशिश तो कर रहे हैं हम जीत जाएं, परंतु फिर भी वो हार जाते हैं। मिसफॉर्चून इज समथिंग वी ऑल हैव टू मीट। और मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, बैड लक जो है वो सभी की लाइफ में आता है। टेक द लॉस विद द ग्रेस यू वुड टेक इन द गेन। तो जो लॉस तुम्हें होता है, जो नुकसान तुम्हारा होता है, अच्छे काम करने जा रहे हो परंतु कभी कभी क्या होता है, लॉस भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, उसको भी अपनी लाइफ का पार्ट समझो। समझो कि ये भी मैंने कमाया है, ये भी मैंने गेन किया है, तो वो तो आना ही होता है। When things go against you, don't whine or complain. तो फिर उत्तर कहता है कि जब सब चीजें तुम्हारे खिलाफ हो, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ना हो रहा हो, तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, फिर भी सब चीजें तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वाइन क्राई नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। जस्ट कॉल ऑन योर करेज एंड ग्रीन इफ यू कैन। उस समय तुम अपने करेज को बुलाओ, साहस को बुलाओ, हिम्मत को दिखाओ अपनी, ग्रीन करो, स्माइल करो, मुस्कुराओ, अगर तुम कर सकते हो उस कंडीशन में वैसे तो। दो यू फेल टू सक्सीड डू नॉट फेल एज ए मैन। हालांकि तुम सफल हो जाने में फेल हो जाओ, परंतु फिर भी एक इंसान के रूप में, एक मैन के रूप में कभी फेल मत होना। यानी कि ऑथर कहना चाहता है कि मैन की एक टेंडेंसी होती है कि मैन को समझा जाता है, पुरुष को समझा जाता है कि वो बहादुर है, साहसी है, उसके अंदर साहस बहुत है, नीडर है, वो डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो कहते हैं कि चाहे तुम अपने काम में फेल हो जाओ, परंतु एक मैन के रूप में फेल मत होना, यानी कि करेज को अपनी कभी मत छोड़ना। नेक्स्ट लाइन, देयर आर डार्क डेज एंड स्टोर्मी विच कम टू अस ऑल। तो फिर उत्तर कहता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो अंधेरे से भरे हों, वो स्टोर्मी हो, तूफानी हो, वो हम सभी की लाइफ में आते हैं। वो ये कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो दुख से भरे होते हैं, दर्द से भरे होते हैं, उदासी से भरे होते हैं। तो सभी की लाइफ में इस तरह के दुख, दर्द, उदासी वाले दिन सभी की लाइफ में होते हैं। When about us in ruin, our hopes seem to fall. जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है और जितनी होप्स होती हैं, आशाएं होती हैं, वो भी लगता है कि अब कोई काम नहीं करेंगे, आशाएं रहती नहीं हमारे अंदर, कोई भी आशा नहीं रहती किसी भी काम से। बट स्टैंड टू वट एवर यू हैपन टू मीट। परंतु उस समय भी तुम डटे रहना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम अपने साहस को मत छोड़ना। वी मस्ट ऑल ड्रिंक द बिटर एज वेल एज द स्वीट। तो हमें दोनों चीजों को लेना होता है, बीटर को भी, और यानी कि हमें कड़वाहट भी लेनी होती है और स्वीट भी लेना होता है, दोनों चीज को हमें लेना होता है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट हम बीटर को लें, स्वीट को ना लें, या स्वीट को लें, बीटर को ना लें। हमें दोनों ही लाइफ के पार्ट होते हैं, दोनों को ही लेना होता है, स्वीट एंड बीटर। एंड द टेस्ट ऑफ योर करेज इज व्हाट डू यू डू इन द आवर्स व्हेन रिवर्सेस आर कमिंग टू यू। और उस समय तुम्हारे ये टेस्ट का, यानी कि करेज का टेस्ट होता है कि जब सब चीजें तुम्हारे खिलाफ हो और उस समय भी तुम्हारे अंदर करेज है, साहस है, हिम्मत है, तो वो तुम्हारे हिम्मत का, यानी करेज का टेस्ट होगा। जब सब चीजें तुम्हारे खिलाफ हो और तब भी तुम में हिम्मत हो लड़ने की, आगे बढ़ने की, तो वो एक तरह से तुम्हारा टेस्ट होगा। नेक्स्ट लाइन में उत्तर कहते हैं, नेवर चेंज्ड इज बैटल बाय कर्स और रिग्रेट। कोई भी बैटल, कोई भी लड़ाई कभी किसी कर्स से, यानी कि अभिशाप देने से, पछताने से नहीं चेंज होती। दो यू विम्पर एंड वाइन स्टिल द एंड मस्ट बी मेट। तो कहते तुम चाहे कितनी भी कंप्लेन कर लो, कितना भी रिग्रेट कर लो, कितना भी पछता लो, तुम उस पर अभिशाप दे दो किसी चीज पर, परंतु जो एंड होता है, जो अंत होता है, वो तो आएगा ही आएगा। जैसे हर रोज दिन निकलता है, तो तुम उस दिन खुश रहो या उदास हो या तुम्हें कोई चोट लग जाए, परंतु वो शाम तो होगी होगी। तो ऑथर इस तरह कहना चाहता है कि वो उस बैटल का एंड तो आएगा ही आएगा। एंड हु फाइट्स अ गुड फाइट दो ही स्ट्रगल इन वेन। तो कभी कभी ऑथर कहते हैं कि ऐसा पर्सन जो अच्छे से लड़ाई लड़ता है, फिर भी वो कई बार हार जाता है। अच्छे से लड़ने वाले भी कई बार हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम कोशिश करें और हमें जीत मिल जाए, तो कभी कभी हम हार भी जाते हैं, परंतु हमें अपना करेज नहीं छोड़ना चाहिए।
shall have many a victory to pay for his pain। और जो लोग अच्छी लड़ाई लड़ते हैं फिर भी हार जाते हैं, उसको बहुत सारी कामयाबी लेनी पड़ती है उस पेन को फिल करने के लिए, उस नाकामयाबी जो उसको मिली है उसको फिल करने के लिए उसको बहुत सारी कामयाबी लेनी पड़ती है। लास्ट 2 लाइन्स में उत्तर कहते हैं, सो टेक यूर रिवर्सेस एज ए पार्ट ऑफ द प्लान। तो जो तुम्हारे रिवर्सेस हैं, जो तुम्हारे मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य है, जो तुम्हारी हार होती है, उसको भी अपने प्लान का पार्ट समझो। which God has devised for creating a man। तुम ये समझो कि गॉड ने वो चीज तुम्हें दी है एक इंसान बनाते हुए। तो जो हार मिलती है, जो दुख आता है आपकी लाइफ में, जो उदासी आती है, उसको भी आपने अपने प्लान का पार्ट समझना है। हमारी लाइफ में दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, परंतु आपने अपना करेज कभी नहीं छोड़ना। Right? So this is all about this beautiful poem. Now some difficult words are written there. Let's understand them. First is falter. Falter means to stumble or move unsteadily, यानी कि लड़खड़ाते हुए चलना। Next, ruin, the complete loss of health, position or hope, यानी कि बर्बादी, पूरी तरह किसी हेल्थ की, पोजीशन की और होप की बर्बादी को बोलते हैं ruin. Reverses, misfortune or losses, मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, बैड लक। राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। आंसर दीज क्वेश्चंस, आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने। इन दिस पोएम द वर्ड बर्डन रेफर्स टू, जो इस पोएम में बर्डन वर्ड है उसका मतलब क्या है? लगेज यानी कि सामान है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेवारियां हैं, या टास्क कोई काम है। तो बर्डन का यहाँ पे मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, विम्पर एंड वाइन मीन्स, विम्पर एंड वाइन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है द सैड क्राई ऑफ अ पप, यानी कि complain. Come on, the question number 3. According to the poet, will you always succeed if you are courageous? तो हमने यहाँ पे बताना है कि पोएट के अकॉर्डिंग, यानी पोएट हमें कहता है कि अगर हम करेजियस हैं, यानी कि हमारे अंदर साहस है, हिम्मत है, तो क्या हम हमेशा अपने काम में सक्सीड होते हैं, सफल होते हैं? सो आंसर वी कैन राइट हियर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, वन विल सक्सीड इफ वन इज करेजियस। तो पोइट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन करेजियस है, हिम्मत वाला है, उसके अंदर साहस है, तो वो पक्का सक्सीड होगा, यानी कि उसकी जीत होगी, उसको जो वो काम कर रहा है उसमें सफलता मिल जाएगी। एंड द एंड हिज एंड हैज द परजिवेरेंस टू ओवरकम स्ट्रगल्स, और उसके अंदर परजिवेरेंस होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जो उसके सामने स्ट्रगल आई है, प्रॉब्लम आई है, उन पे ओवरकम करने के लिए। राइट, तो ऐसा पर्सन जिसके अंदर करेजियस हो, उत्तर के अकॉर्डिंग, वो पक्का सक्सीड होता है लाइफ में, उसको सफलता मिलती है। क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड आंसर। हैव यू एवर हैव अ डार्क एंड स्टॉर्मी डे इन योर लाइफ? डिस्क्राइब। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन वी कैन लिव because answer can't be common. I can't tell you the common answer. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अपनी लाइफ का वो दिन बताओ जब आपकी लाइफ में डार्क या स्टोर्मी हो, यानी कि आपकी लाइफ दुख से भरी हो या उदासी से भरी हो। तो सभी के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए कॉमन आंसर देना मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन आपने छोड़ देना है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा जो कॉमन हो। तो बी क्वेश्चन आपने छोड़ देना है, थिंक एंड आंसर। नेक्स्ट, कम ऑन द सी पार्ट। Discuss in class what is more important, success or the courage to face difficulties. Give reasons for your choice. तो आपने बताना है कि सक्सेस के लिए, यानी कि डिफिकल्टीज को, यानी कि जो मुसीबतें आती है हमारी लाइफ में, उनको उनका सामना करने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? सक्सेस यानी कि सफलता, या फिर करेज यानी कि साहस? इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? So answer we can write here, success is important. However,
द करेज टू फेस डिफिकल्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें यह बताना है कि सक्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, परंतु फिर भी जो डिफिकल्टियों को फेस करने के लिए वहां पे करेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज मोर इम्पोर्टेंट, एज विदाउट दैट सक्सेस कांट बी अनअटेनेबल इफ वन इज बर्डनेड विद द डिफिकल्टीज। तो हमें ये बताना है कि करेज भी इंपॉर्टेंट है, सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, परंतु करेज सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे अंदर करेज नहीं होगा, साहस नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, तो हम जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, हमारी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि पढ़ने की, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी लाइफ में, उनके रिगार्डिंग जो दिक्कत आती है वो हम सहन नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर करेज नहीं है। उसके बाद हम आंसर क्या लिख सकते हैं, एंड डज नॉट हैव द करेज टू ओवरकम देम, और हमारे अंदर करेज भी नहीं है उनको ओवरकम करने। राइट, नेक्स्ट, अ डार्क एंड स्टॉर्मी डे कैन बी एनी डे when we are feeling sad, burdened, overwhelmed and any other negative emotion। तो जो डार्क और स्टोर्मी डे हो सकता है वो हमारी लाइफ का कोई भी दिन हो सकता है, यानी कि उदासी वाला दिन कोई भी दिन हो सकता है, जिस दिन हम खुश ना हो, बहुत उदास हो, तो ऐसा दिन कोई भी हो सकता है। राइट, so this is all about the question answer and this poem।